Hello everyone, myself Yadav Nisha, on behalf of Helmet School. I am here to teach you EVS to class 4. Today I am going to start chapter number 10, Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Sports are integral part of our life. Why sports are important for us? Because it maintains our physical fitness and it makes us strong. There are two type of sports, two type of games, indoor games and outdoor games. What is indoor game? The games which we can play inside our house, that game is known as indoor games. Some example of indoor games are Ludo, Carom, chess, snake and ladders. And what are outdoor games? So the games which we can play outside of our house or somewhere, that is known as outdoor games. Some example of outdoor games are Kabaddi, cricket, hockey, basketball, etc. So today I am going to start our topic Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Now open the page number 73 of your textbook. Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Out, out, out. All the girls shouted loudly. Kabaddi, Kabaddi, hold from here. Kabaddi, Kabaddi, hold from the leg, hold her leg. Kabaddi, Kabaddi, Vasudha, you come here, you hold her from here. Hey Susila, make sure that her hand does not touch the line. Hold her hand. So what we can conclude? We can conclude that they are playing Kabaddi. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. ये क्लियर है कि वो एक गेम खेल रहे हैं बिकॉज दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट. वो सारे चिल्ला रहे हैं आउट आउट आउट. वॉट डू यू कॉल दिस गेम? चडुगुडू, हुतुतु, छुकिटकिट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. आप इस गेम को क्या बोलते हो? समवेयर इट इज नॉन एज छुकिटकिट, समवेयर इट इज नॉन एज चडुगुडू एंड समवेयर इट इज नॉन एज हुतुतु एंड समवेयर इट इज नॉन एज kabaddi. When the girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, and while one girl caught her by the waist. But Shyamla was not the one who gave up. और कुछ गर्ल्स ने इसमें श्यामला, हम देख सकते कि कुछ गर्ल्स ने श्यामला को घेर रखा है, कुछ ने उसके पैर पकड़ रखे, कुछ ने उसके हैंड पकड़ रखे हैं और कुछ ने उसको कमर से पकड़ रखा है. एक गर्ल ने उसको कमर से पकड़ रखा है. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. वो अपने आप को पूरी मजबूती के साथ वो जो बिटवीन लाइन, जो सेंटर में लाइन होती है, वो लाइन तक लेकर आती है और मैनेज करती है खुद को जीतने के लिए, खुद को विनर बनने के लिए. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite side were holding her. जब श्यामला ने ये जो सेंटर लाइन टच की तब सभी गर्ल्स ने उसको पकड़ रखा था. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. तो इसलिए क्या हुआ कि जो अपोजिट टीम थी उसकी सारी गर्ल्स आउट हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन. रोजी क्या आर्ग्यू करती है? आर्ग्यू मीन्स आर्ग्यू मीन्स कंफ्यूजन. सी क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि श्यामला ने बीच में सांस ली. एंड द रूल ऑफ द कबड्डी इज दैट वी हैव टू होल्ड आवर ब्रेथ and continuously we has to speak kabaddi, kabaddi, kabaddi. And so Rosie argued that Shyamla had taken a breath in between, so the team was not out. तो रोजी ये बोलती कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली तो टीम आउट नहीं हुई है. श्यामला insisted that this was not true. श्यामला कहती कि ये सही नहीं है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? अगर उसने बीच में सांस ली थी तो ये गर्ल्स ने इसको क्यों पकड़ के रखा, ऐसा वो इंसिस्ट करती है. देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट. और उन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है, आर्ग्यूमेंट चलती है उनकी. फाइनली श्यामला वॉन. और फाइनली जो एम्पायर्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि श्यामला जीत गई है. क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम? सो एज वी ऑल नो देयर आर 2 टीम्स इन कबड्डी and each of the team there are 12 total players in a team. From that 7 are on the ground. 7 players are there on the ground. How many players got out when Shyamla touched the center line? So all the girls of opposite side who were holding her, they all are out when Shyamla touched the center line.
हाउ डू यू रिसॉल्व द डिस्प्यूट ड्यूरिंग गेम्स? आप जो गेम्स में झगड़े होते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हो? सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ एन अंपायर और our elders to solve the disputes. So this is what a game of kabaddi is like. कबड्डी की गेम क्या है? Snatching and pulling happens. Someone is caught. There is shouting also. उसमें खींचातानी होती है और कभी कभार जब कोई आउट होता है तो चिल्लाते भी हैं. This is a game of bravery and it has many rules. ये एक बहादुरी का खेल है और इसमें काफी रूल्स है, काफी नियम है. What does one do when one takes टर्न इन कबड्डी? हमें क्या करना चाहिए जब हमारा कबड्डी में टर्न हो? ही और शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली एंड दे हैव टू होल्ड देयर ब्रेथ अंटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजीशन. यू आर टेकिंग योर टर्न, बी केयरफुल. जब आपकी बारी हो तो आपको सावधान रहना चाहिए. यू हैव टू यूज योर बॉडी एंड माइंड टू. यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड एंड व्हेन यू टच द लाइन ऑफ अदर टीम टेक केयर ऑफ दैट नोबडी फ्रॉम देयर टीम विल कैच यू. हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल? आपको सावधान रहना है. आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों का यूज करना है. जब आप दूसरी टीम में जा रहे हैं तो उस टीम के कोई दूसरा प्लेयर आपको पकड़ ना ले, इसका ध्यान रखना है. इस तरह आपको केयरफुल रहना है. होल्ड योर ब्रेथ सेइंग कबड्डी कबड्डी. हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली? काउंट इट. व्हेन यू गो टू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज. जब आप कबड्डी खेलने जाते हो तो आपको तीनों चीज के साथ अटेंशन रखना है, तीनों चीज का ध्यान रखना है, आपके लेग्स, आर्म्स और आइज का. यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प्स यू अलोन. आपको पता चलेगा कि ये तीनों बॉडी पार्ट्स जो उनका कोऑर्डिनेशन, उनका सहयोग आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. थिंक एंड टेल व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन कबड्डी? व्हेन वी आर आउट, सो when a player enters the area of opposite team saying kabaddi kabaddi and does not touch the center line, then he is out. In some games those who are having their turn they touch others. In some games they do go to find the players. Which are such games similar to this? Which games are similar to kabaddi? So the games of satoli, that is known as seven tiles also, and the game of hide and seek, and then Kho-Kho. These games are like Kabaddi Kabaddi. On page number 76, Karnam Malleswari. Karnam Malleswari is a weightlifter. ये एक weightlifter थे. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable and Malleswari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her four sisters also practice weightlifting. कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से. एंड हर फादर वॉज एन पुलिस कांस्टेबल, और उसके फादर क्या थे? कांस्टेबल थे. एंड मल्लेश्वरी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग व्हेन शी वॉज 12 years old. जब वो 12 years की थी तब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था. मल्लेश्वरी कैन लिफ्ट ऑफ 130 kilograms वेट. अभी वो 130 kg वेट उठा सकती हैं. And Karnam Malleswari has won 29 medals in international events. और उन्होंने अभी तक 29 medals जीते हैं. Her four sisters also practice weightlifting. और उनकी जो 4 sisters है वो भी weightlifting की प्रैक्टिस कर रही हैं. Sarita Gaikwad was born in Karadiyamba village of Dang district of Gujarat on 1st June 1994. डांग डिस्ट्रिक्ट के काराडियम्बा विलेज में सरिता गायकवाड़ का जन्म हुआ था. सरिता लक्ष्मणभाई गायकवाड़ इज अ गुजराती स्प्रिंटर. स्प्रिंटर मीन्स रनर, गुजराती स्प्रिंटर. हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग एंड शी स्पेशलाइजेस इन द 400 meters रनिंग रेस एंड 400 meters हर्डल. और उन्होंने वो मेनली 400 मीटर रनिंग के लिए जानी जाती हैं. She won gold medal in women's 4x400 meters relay race at the 2018 Asian Games, and Gujarat government has selected her as brand ambassador for बेटी बचाओ अभियान. जो बेटी बचाओ अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर की तरह सरिता गायकवाड़ को गुजरात गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है. स्टोरी ऑफ 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers, but they are different. Who are these 3 grandmothers? They are Jwala, Leela and Hira. The 3 pictures of
The picture is of three sisters, Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. All three of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells, when we were young, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. जब वो जवान थे तब गर्ल्स को अलाउ नहीं था. वो मुंबई के रहने वाले, उन्होंने बताया कि जब हम जवान थे तो गर्ल्स अलाउ नहीं थी कबड्डी खेलने के लिए, उन्हें यानी अनुमति नहीं थी. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. लोगों का ये मानना था कि अगर गर्ल्स ऐसी गेम खेलेगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा. दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी. उनका मानना था कि गर्ल्स को ये कबड्डी का गेम खेलने के लिए लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते हैं. दैट इज वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. इसलिए उन्होंने गर्ल्स को कबड्डी खेलने से रोक रखा था. व्हेन दे वर यंग देयर फादर डाइड, देयर मदर हैड एंड टू मामास मैटरनल अंकल्स बॉट देम अप. जब यानी वो यंग थे, जवान थे, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी एंड और उसके मदर और दो मामा ने उसे बड़ा किया था. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi and उनके मामा जो थे दोनों, वो कबड्डी और खो खो में इंटरेस्ट रखते थे. वो खेलते थे और उन्हें इनकरेज, उनको उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला and Leela talk about their experience almost 50 years ago when we started to play kabaddi. Girls got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play and my uncle's mother supported us. जब हमने 50 years पहले यानी जो कबड्डी की गेम खेलना शुरू किया तब गर्ल्स को अलाउ नहीं था, लेकिन मेरे मदर ने और मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया. We three learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों ने ये गेम खेली और दूसरी लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया. We formed a kabaddi club which is active even today. और उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया और वो अभी भी चल रहा है. Remembering those days, Leela and Hira still remember those days. They tell how they won some matches which they were about to lose. लीला और हीरा याद करते हैं कि कैसे उन्होंने हारने वाली मैचों को भी जीता है. Once they went to a big city to play a match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie. As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama. हम लोग एक बार मैच शुरू होने में थोड़ी देर थी, एक सिटी में हम लोग गए थे मैच के लिए, लेकिन मैच शुरू होने में थोड़ी देर थी तो हम लोग एक मूवी थिएटर चले गए. लेकिन तभी वहाँ थिएटर में क्या होता है कि उसकी कुछ डिस्टर्बेंस होती है, कुछ लोग कुछ आवाज़ करते हैं. आवाज़ किसने की थी? उसके मामा ने. Who was looking for us in the hall with a torch. जो उसको पूरे सिनेमा हॉल में टॉर्च से ढूंढते हुए आ रहे थे. When he found us, he gave us a big scolding. जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो उन्होंने हमें बहुत डांटा. This was the experience of three sisters, Jwala, Leela and Hira. I hope you understood this video. I will send the PDF of this chapter in our WhatsApp group and we will meet soon to solving your doubts and queries. Thank you and have a nice day.